We'll start with next topic today, that is always Poisson's ratio. Poisson's ratio लिखने के टाइम हम इसको poisons लिखते हैं, but that is not a poison. It is Poisson's. The correct pronunciation is Poisson's ratio. Very interesting and very simple topic. If you remember, हमने जब फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन मतलब टेंसाइल स्ट्रेन देखा था, तो व्हाट वी सेड कि हमारे पास अगर एक रॉड है या फिर एक वायर है, ऑफ कोर्स, एंड इफ यू अप्लाई अ स्ट्रेचिंग फोर्स, मतलब यू आर अप्लाइंग अ फोर्स व्हिच विल इंक्रीज द लेंथ ऑफ दिस रॉड, राइट? तो इन दैट केस लेंथ तो बढ़ेगा, दैट इज ट्रू, लेंथ विल इंक्रीज, but thickness will decrease, right? So whenever a force is applied on a body, there are change in size in two directions. एक तो in the direction of force. So what is happening, जिस direction में force है उस direction में change in size है, मतलब in this case there is increase in length. और force को perpendicular direction, तो force को perpendicular जो direction है उस direction में there is decrease in thickness. Decrease in thickness मतलब decrease in diameter or radius, right? So what we know is whenever a force is applied on a body, then there is change. Number one, change in the size of the body in the direction of applied force. Number two, change in the size of the body in a direction perpendicular to the applied force. Good. तो पहले ये पता होना चाहिए, तो हम लोग बेसिक्स लिख लेंगे, then we will come to the real point. So when a force is applied to a body like wire or rod, etc., there is change. There is, number one, change in size in the direction of the force, in the direction of the force. जैसे कि मैंने जो एग्जांपल दिया, तो in this case the change is nothing but increase in length in the direction of force. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में इंक्रीज इन लेंथ है. नंबर टू, change in size in the direction perpendicular to force, in the direction perpendicular to the force. For example, there is decrease in diameter or thickness or radius in a direction perpendicular to that of. पहले आपको बेसिक ना पता होना चाहिए, राइट? इसका मतलब ये होता है कि elongation is always accompanied by contraction. Increase in length is always accompanied by decrease in diameter or thickness. So therefore, increase in length is always accompanied by decrease in diameter, or you can say radius. Hence, और आपको याद होगा, I told you, अगर इंक्रीज होता है तो आप बोलते longitudinal, क्योंकि it is along the length. Hence, longitudinal elongation is always accompanied by lateral contraction. What by lateral? Perpendicular, sideways, exactly. तो along the length अगर होगा तो आप उसको बोलते हो longitudinal. अगर perpendicular to length होगा मतलब sideways, तो उसको बोलते हो lateral. तो जब हमने फोर्स लगाया तो लेंथ क्या हुआ? बढ़ा, मतलब elongation किसका है? longitudinal. और contraction किसका है? lateral. Very good. Hence longitudinal elongation is always accompanied by
accompanied by lateral contraction. Lateral contraction. क्लियर यहाँ तक? तो अगर आपको याद होगा, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड समथिंग कॉल्ड एज longitudinal strain या फिर टेंसाइल स्ट्रेन, दैट वाज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. तो सिमिलर हम चेंज इन डायामीटर पर यूनिट ओरिजिनल डायामीटर, इसको डिफाइन कर सकते हैं लैटरल स्ट्रेन. व्हाट वाज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेकिन लेंथ इंक्रीज हुआ तो डायामीटर कम हुआ. तो जैसे आपने बोला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वैसे ही चेंज इन डायामीटर अपॉन ओरिजिनल डायामीटर विल बी डिफाइंड एज लैटरल स्ट्रेन. वो भी स्ट्रेन है, ये भी स्ट्रेन है, सिर्फ उसमें लेंथ बढ़ रहा है, इसमें डायामीटर कम हो रहा है. Change in length, increase in length upon original length, longitudinal strain. Decrease in diameter upon original diameter is lateral strain. So पहले lateral strain define करो, क्योंकि हमारा ultimate aim है to define what is ratio, लेकिन Poisson's ratio define करने के लिए हमको lateral strain की जरूरत पड़ेगी. तो lateral strain is defined as change in diameter or radius, of course, क्योंकि diameter चेंज होना मतलब radius चेंज होना, is defined as change in diameter per unit original diameter, मतलब original radius. Good. अब ये Poisson's ratio क्या है वो देख लेते हैं. जैसे आपको फ्लो याद होगा, विद इन इलास्टिक लिमिट टेंसाइल स्ट्रेस इज मतलब नॉट टेंसाइल बट जनरल Hooke's law, विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. यहाँ पे विद इन इलास्टिक लिमिट लैटरल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. मतलब जिस प्रोपोर्शन में लेंथ बढ़ेगा उसी प्रोपोर्शन में रेडियस या डायमीटर कम होगा. सो विद इन इलास्टिक लिमिट, lateral strain is directly proportional to longitudinal strain. Therefore, what you can write is lateral strain is proportional to longitudinal strain, and therefore you can say lateral strain equal to some constant जिसको हम बोलते हैं सिग्मा, और इस सिग्मा को बोलते हैं Poisson's ratio, some constant into longitudinal strain. And therefore what you can do is you can write down sigma as lateral strain upon longitudinal strain. अब बता दो कि सिग्मा क्या है. वेयर सिग्मा इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी known as Poisson's ratio. It is pronounced as Poisson's ratio. Good. Thus Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain. Very good. Thus Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to that of longitudinal strain. अब क्योंकि चाहे वो lateral strain हो dimensionless, change in diameter upon dimensionless, चाहे वो longitudinal strain हो ये भी
चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ डायमेंशन लेस, क्योंकि ये दोनों डायमेंशन लेस है तो फिर सिग्मा क्या होगा, डायमेंशन। तो सिग्मा इज अ प्योर नंबर और इसकी वैल्यू से 1 के बीच आती है। सो Poisson's ratio is a pure number. Poisson's ratio is a pure number. Number मतलब it does not have any dimensions. तो ये आपको पता होना चाहिए. अब this is sufficient enough to describe what is Poisson's ratio, लेकिन हमको with an example देना ही पड़ेगा. तो आप बोलोगे consider wire या फिर rod of length L, it's up to you, of length L and diameter D. When a force is applied on this wire such that the wire engages by an amount delta L, right? At the same time, it also contracts laterally by an amount delta D. फिर आप डिफाइन कर देना Poisson's ratio को. तो let us consider a wire of length L. Let F be a force acting on the wire such that the wire elongates by an amount delta L. At the same time, diameter of the wire decreases by delta D and radius decreases by delta R. Good. Therefore, Poisson's ratio define कैसे करना है आपको? Lateral strain by longitudinal strain. Therefore, पहले lateral strain define कर दो. Therefore, lateral strain is equal to delta D by D or delta R by R. Minus and minus. क्यों? क्योंकि लेंथ बढ़ा. Yes. लेंथ बढ़ेगा तो डायमीटर कम होगा. That is why. Also, longitudinal strain is equal to delta L by L. Therefore, Poisson's ratio sigma is equal to lateral strain by longitudinal strain. And this is equal to minus delta D by D upon delta L by L equal to minus delta R by R upon delta L by L. ये आ गया आपके पास Poisson's ratio का फॉर्मूला. अगर आप न्यूमेरिकली बात कर रहे हो तो न्यूमेरिकली यू जस्ट फॉरगेट नेगेटिव साइन. So done. So this is what you get. Simple. Big deal. You are applying a force. Length is increasing. So longitudinal strain है delta L by L. Since length is increasing and volume of the wire is constant, क्योंकि हमने extra तो मटेरियल डाला नहीं, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो फिर थिकनेस को कम होना पड़ेगा, मतलब डायमीटर कम होगा. तो डेल्टा डी बाई डी इज लैटरल स्ट्रेन. लैटरल स्ट्रेन नेगेटिव के साथ आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है तो डायमीटर कम होगा. दैट इज व्हाई. दोनों का रेशियो ले लो, लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यू गेट Poisson's ratio. क्लियर यहाँ तक? गुड. So now it is time for us to solve some numericals. Of course, हमने last session में we have solved numericals related to 3 types of stress, strain, modular. तो जो रह गए वो भी होंगे और हम लोग Poisson's ratio पे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपोजिट वायर मतलब is prepared by joining a tungsten wire and a steel wire end to end. पहले टंगस्टन वायर है, उसके बाद स्टील वायर है. बोथ द वायर्स आर ऑफ सेम लेंथ. दोनों वायर का लेंथ सेम, इन द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो पहले सिस्टम क्या है वो देख लेते हैं. सिस्टम में यू हैव, दिस इज कोड ऑफ कोर्स, देन यू हैव अ टंगस्टन वायर.
तो मान लो ये टंगस्टन वायर है, दिस इज टंगस्टन वायर, और उसके बाद आपको बोला है यू हैव अ स्टील वायर, और दोनों का लेंथ क्या है, सेम, दोनों का लेंथ है सेम, एंड दे आर जॉइंड एंड टू एंड, तो दे आर जॉइंड एंड मतलब दे लाइक दिस, ऐसा उसको ज्वाइन किया है एंड टू एंड, दे आर जॉइंड एंड टू एंड। क्लियर? तो पहला वायर कौन सा है, टंगस्टन, दूसरा कौन सा है, स्टील, दूसरा वायर है स्टील का, दिस इज स्टील वायर एंड टंगस्टन वायर। गुड। और आगे आपको बोला है, इसके आगे लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो एक काम करेंगे हम साथ में लिखते भी जाएंगे, बिकॉज यू विल नीड दिस डेटा एनीवेज। तो व्हाट इज गिवन टू अस, गिवन टू अस इज लेंथ इज कांस्टेंट, दोनों का सेम है, व्हाट एल्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट, वेरी गुड। आगे आपको बोला है इफ दिस कंपोजिट वायर इज सस्पेंडेड टू अ रिजिड, तो हमने पहले ही दिखा दिया, फ्रॉम अ रिजिड सब, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड, एंड अ फोर्स इज अप्लाइड, कहां से फोर्स अप्लाई किया है, टू इट्स फ्री एंड, इट गेट्स एक्सटेंडेड बाय 3.25 mm। तो पहले एक लोड लगा दो, लोड क्या करेगा, लोड एक्सटेंशन का काम करेगा, तो अप्लाई लोड ओवर हियर, ये लोड लग गया इसके ऊपर। गुड। व्हाट इज द टोटल एक्सटेंशन, 3.5। अब जब 3.25 बोला है तो टोटल कंपोजिट वायर का बोला है, मतलब आपको बताया है व्हाट दे आर टेलिंग यू इज डेल्टा total extension delta L will be extension in tungsten wire plus extension in steel wire. This is how much, 3.25 mm. ये याद रखना, this is what they are giving you, ये याद रखना। Good, fine, this is what you have। आगे आगे आपको बोला है calculate the increase in length of tungsten wire and steel wire separately. So you are supposed to find out what is delta LT and what is delta LS separately। और एक चीज जो हमने लिखी नहीं, क्योंकि वायर कंपोजिट था और लोड आपने दोनों को लगाया, मतलब फोर्स भी कांस्टेंट होगा, जितना फोर्स टंगस्टन वायर पे है उतना ही फोर्स स्टील वायर पे है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू नीड वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉड्यूलस, दोनों का जो दिया नहीं है, तो इट शुड बी गिवन, इट इज मिसिंग डेटा। तो आपको देना चाहिए था यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील 2 into 10 power 11 Newton per meter square, and that of tungsten is 4.11 into 10 power 11 Newton per meter square। इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। गुड, देना चाहिए था, नहीं, नो प्रॉब्लम। देन आई टोल्ड यू वंस, द मोमेंट यू सी यंग्स मॉड्यूलस, मतलब फॉर्मूला तो यंग्स मॉड्यूलस का अप्लाई होने वाला है। और एक चीज समझ लो, आपके पास एक इक्वेशन है दिस वन, और इस इक्वेशन में दो अननोन है, कौन से दो अननोन है, डेल्टा एल टी एंड डेल्टा एल एस, ये सॉल्व नहीं हो सकता। टू अननोन्स एंड वन इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व, टू इक्वेशन एंड टू अननोन कैन बी सॉल्व। तो हमको क्या करना पड़ेगा, दूसरा इक्वेशन चाहिए, दैट इज योर जॉब, दैट्स इट, बाकी कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला एज यू ऑलरेडी नो कि फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, वो यंग्स मॉड्यूलस का, y इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल, राइट। तो y, क्योंकि f कांस्टेंट है, लिखा है क्या, यस, l कांस्टेंट है, यस, a कांस्टेंट है, यस, तो यंग्स मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा एल, इनवर्सली टू डेल्टा एल मतलब बेसिकली। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू यूज। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल, आप ऐसा कर सकते हो, y स्टील अपॉन y टंगस्टन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा एल टी और नीचे आएगा डेल्टा एल एस। गुड, तो ये वैल्यू आपके पास है 2 into 10 power 11, ये है 4.11 into 10 power 11 इक्वल टू डेल्टा एल टी अपॉन डेल्टा एल एस, डेल्टा एल एस। Then what you have is, what happened, new page, okay, no issues, good। Then cancel and cancel, नीचे अगर 4 होता तो 2/4 इज 1/2, मतलब 0.5, नीचे का नंबर बड़ा होना मतलब ओवरऑल नंबर छोटा होना, मतलब
इट इज लेस देन 0.5, ये आता है 0.487. एग्जैक्ट कैलकुलेशन विल गिव यू 0.487. तो डेल्टा एल टी अपॉन डेल्टा एल एस. Okay, therefore you will have delta LT equal to 0.487 delta LS. Equation number 2. अब आपके पास दो इक्वेशन और दो अननोन है. You can solve this. So substitute this value here in equation number 1. So from equation number 1 and 2, delta LT is 0.487 delta LS plus delta LS equal to 3.25 mm. mm को mm में रहने दो, no problem. हमको आंसर mm में ही मिल जाएगा फिर, so doesn't matter. और वैसे भी change in length is very small, so normally is measured in mm. Very good. So this is 0.487 में 1 ऐड कर रहे हो तो 1.487 डेल्टा LS equal to 3.25 mm. So change in the length of steel wire is 3.25 upon 1.487 mm. Right? So of course 2 से थोड़ा ऊपर आएगा क्योंकि 1.5 का डबल 3 होता है, तो 2 से थोड़ा ऊपर आएगा 2.068. तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप करोगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है, तो आप करोगे तो डेल्टा LS मिल गया. राइट? तो अब दो तरीके हैं, 2 वेज ऑफ फाइंडिंग ऑफ डेल्टा LT. एक तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो या फिर यही वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 1 में. दैट इज बेटर क्योंकि इसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा फिर आपको. तो पुट दिस डेल्टा LS इन इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 डेल्टा LT equal to 3.25 minus 2.68 and answer will be in mm. तो ये आएगा 1 point something something 1.182 mm. So this is how you are supposed to solve this question. Next question. A steel wire having cross-sectional area 1.2 mm square is stretched force of 120 Newton if a lateral strain of 1.5 और यहाँ पे लिख दिया था mm. हमको पता है lateral strain के कोई यूनिट्स नहीं होते, तो that is not correct. तो mm नहीं आएगा वहाँ पे, तो correction 10 power minus 4 is produced in the wire. Calculate ratio given Young's modulus for steel is 2 into 10 power 11 Newton per meter square. तो first of all given में आपको दिया है area of cross section कितना 1.2 mm square. आपको पता है 1 mm is 10 power minus 3 मीटर का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा A equal to 1.2 into 10 power minus 6 मीटर स्क्वायर. फोर्स is 120 न्यूटन. आगे if a lateral strain मतलब डेल्टा R by R, ये कितना दिया है 1.455 into 10 power minus 4. और आपको फॉर स्टील दिया है, आपको y की वैल्यू हैव बीन गिवन 2 into 10 power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट Poisson's ratio. You are supposed to find out Poisson's ratio. और आपको फॉर्मूला ऑलरेडी पता है Poisson's ratio का. You know that this is basically delta R by R upon delta L by L. Problem here is कि हमको delta L by L ना delta L पता है ना L पता है, दोनों ही नहीं. You don't know both of them. You don't know what is delta L. You don't know what is L. तो डेल्टा L by L मिल नहीं सकता. बट वेट अ मिनट, वी नो व्हाट इज यंग्स मॉड्यूलस. F by A अपॉन डेल्टा L by L. यहां से तो मिल जाएगा. तो therefore डेल्टा L by L, इसको शिफ्ट कर दिया, y को वहां शिफ्ट कर दिया, F by AY. तो ये जो पॉइसन्स रेशियो था इक्वेशन 1 और ये जो 2 है,
इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो substituting equation 2 in equation 1, what you will get is sigma equal to delta r by r upon f upon ay, राइट। तो ये मिल जाएगा आपको डेल्टा r बाय r, करेक्ट, ay जाएगा ऊपर ay बाय f। तो ये फॉर्मूला, you have to use this formula to find out what is Poisson's ratio. So you can just use this formula to find out Poisson's ratio. इसमें से हम इसको हटा देंगे, we don't need this, take it over here. Now delta r by r, delta r by r is 1.455 into 10 power minus 4. A 1.2 into 10 power minus 6, 2 into 10 power 11, force is 120. एक काम करो, ये 1.2 का पॉइंट निकाल के 10 पावर माइनस 6 को -7 कर दो। इससे फायदा क्या हुआ, ये 10 पावर प्लस 11 है, ये -7 -4 -11, मतलब कैंसल। और क्या एडवांटेज है, 1 जा एंड 10 जा। अब वेट 1.45 इंटू 2 2.9, 1.455 into 2 is 2.910 upon 10, मतलब 0.291 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a telephone wire 125 meter long and 1 mm in radius is stretched to a length 125.25 meter and a force of 800 Newton is applied. What is the value of Young's modulus for the material of wire? So given quantities में you have initial length कितना 125 meter, you have final length, फाइनल कितना 125.25, मतलब चेंज इन लेंथ आपको मिल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज 0.25 मीटर, और आपको दिया है रेडियस और आपको दिया है फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स कितना है 800 न्यूटन एंड रेडियस 1 mm, मतलब 10 पावर -3 मीटर। और क्योंकि आपको रेडियस दिया है तो यू नो कि यंग्स मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए यू नीड एरिया, तो आपको एरिया लगने वाला है, लेते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई और 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। देन यू आर सपोज टू फाइंड आउट यंग्स मॉड्यूलस एंड फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, y equal to f a delta. So we have everything that we need. हमारे पास f की वैल्यू है, l की वैल्यू है, a की वैल्यू और डेल्टा l की वैल्यू है। तो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल हियर, y equal to f 800 मतलब 8 into 100, l fl, what is l? L initial 125 upon a is 10 power -6 into delta L is 0.25। अब आपके ऊपर है कैलकुलेशन, इफ यू वांट इस 0.25 का पॉइंट निकाल लो, 10 पावर -6 को -8 कर दो, 1 और 5 जा, या फिर 125 8 से 1000, 125 into 8 is 1000, ऐसा भी कर सकते हो। 125 into 8 is 1000, 1000 और ये 10 पावर 2, 10 पावर 5, तो ये आ जाएगा 10 पावर 2, 125 into 8 is 1000, 10 पावर 3। अब अगर ऐसा करोगे तो फिर नीचे आपको मल्टीप्लिकेशन आपका काम बढ़ जाएगा। तो माय सजेशन इज डू नॉट डू दिस, क्योंकि फिर वो नीचे का आपको वैसे भी करना पड़ेगा।
आपके ऊपर, अल्टीमेटली योर कॉल। कैसे? तो ऐसा है, पाई 10 पावर -6 ऊपर जाके +6, 25 इंटू 10 पावर -2 वो भी ऊपर जाके +2, उसको लिखता हूँ 100, 1 एंड 4। तो 4 अपॉन पाई मतलब 0.318, 1 अपॉन पाई 0.318, 2 3 5 6 11, 10 पावर 11। अब ये कैसे करते हो? सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, 4 इंटू 3 12 बराबर, और आगे का पॉइंट 18 इंटू 4, व्हाट इज 18 इंटू 4? 72, 72, यस। तो ये आ जाएगा आपके पास 127 समथिंग समथिंग, राइट। लेकिन 4 इंटू 0.3 है, तो 1.27 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वही एग्जैक्ट आंसर है, 1.27 इंटू 10 पावर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जस्ट अ मिनट। फाइन। A rubber band originally 30 centimeter long. So you have a rubber band, initial length is 30 centimeter, is stretched to a length of 32 centimeter. Final length is 32 centimeter. So obviously change in length, LF minus LI, that is 2 centimeter. What is the strain produced? Very difficult question. Strain produced मतलब delta L by L initial, okay, initial length upon original length, and solution is very difficult. Delta L upon Li 2 centimeter upon 30 centimeter, 1 upon 15. If you don't know what is 1 upon 15, तो कोई बात नहीं, 1 upon 3 into 5 तो पता ही होगा, 1 into 3, 1 into 5, 1 into 3 तो पता ही होगा, 0.3333, 1 upon 5 is 0.2, 0.333 into 0.2 is 0. अच्छे से सोच लो, 0.666, 666, this is 6.66 into 10 power -2, 1 की 2 पक्का। देखो अभी क्या है, वेट अ मिनट, ज्यादा टेंशन लेना मत। ये इसको 333 लिख दो 10 पावर -3, तो ये आ गया 333 10 पावर -3, ये आ गया 2 इंटू 10 पावर -1, ये आ गया 666 इंटू 10 पावर -4। इसके दो मतलब इसके दो इसको दे दिए, तो 6.66 इंटू 10 पावर -2। तो फाइन, so you should be able to do such calculations. 6.66 into 10 power -2 यूनिट क्या आएगा? कुछ नहीं, क्यों? इट इज स्ट्रेन। So that's it for today.